بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سدرا کی کہانیاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی، عورتوں کے بچے پیدا کرتی تھی، حالانکہ میں خود کئی سالوں سے بانجھ تھی۔ ایک دن ایک کم عمر لڑکی درد سے کرہاتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خوبصورت بیٹا جنا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی مجھے اسے پانے کی خواہش جاگی۔ میں نے فوراً وہ بچہ چھپا دیا اور اس لڑکی کو بولا، مردہ بچہ جنا ہے تم نے۔ یوں اس بچے کو میں گھر لے آئی اور پال کر جب جوان کیا تو ایک دن اچانک وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی بھی لایا۔ جو ہی میں نے اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی عورت تھی جس کی گود سے میں نے… میرا نام ماریہ پرویز ہے۔ مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میڈیکل پروفیشن میں جاؤں۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا، اور یہ کوئی ایسا خواب نہیں تھا جو کبھی پورا نہ ہو سکتا ہو۔ ہمارا تعلق تو ویسے بھی امیر خاندان سے تھا اور میں آرام سے BBS کر سکتی تھی۔ FSC کے بعد بابا نے میرا داخلہ داؤد میڈیکل کالج میں کروا دیا۔ یوں 4 سال پڑھائی اور 1 سال ہاؤس جاب کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ بابا نے میرا شوق دیکھتے ہی مجھے ذاتی کلینک کھول دیا، جسے پا کر میں بے حد خوش تھی۔ جلد ہی سارا کام مکمل ہو گیا اور اب میں باقاعدہ اپنے گائنی کلینک کو وقت دینے لگی۔ 1-2 سال میں وہ بھی چل پڑا۔ اب اگر کچھ باقی تھا تو وہ میری شادی تھی۔ باقی تو میں نے جو چاہا وہ مجھے مل گیا۔ اب میرے لیے رشتے دیکھے جا رہے تھے، لیکن جب زندگی کے ہر کام میں میری مرضی پوچھی تھی تو وہ کام بھی کر دیا تھا، اس لیے میری رائے ان کے لیے معنی رکھتی تھی۔ آج جب میں کلینک سے واپس آئی تو انہوں نے مجھ سے براہ راست ہی پوچھ لیا، بیٹا بتاؤ تمہیں کیسا رشتہ چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے مجھے اپنی بیٹی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کے لیے اب رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ شکورہ کو میں نے رشتے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن ہم تم سے بھی بات کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری رائے جو ضروری ہے کہ تمہیں کیسا لڑکا چاہیے۔ آخر زندگی تو تمہیں نے گزارنی ہے، اس لیے فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔ مجھے اب لوگوں پر پورا یقین ہے پاپا۔ آپ میرے لیے جس کو بھی پسند کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا، اس لیے ایسی کوئی بھی خاص ڈیمانڈ نہیں میری۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر آپ کو لڑکا اچھا لگے، چاہے وہ غریب بھی کیوں نہ ہو، تو اسے یہ جان کر نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ میں کما تو اتنا لیتی ہوں کہ ہم دونوں کا آرام سے گزارا ہو جائے گا۔ بس مجھے عزت کرنے والا چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے میرے پاس۔ اپنی طرف سے میں نے ان کو مطمئن کر دیا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کو واقعی کوئی لڑکا پسند تھا، لیکن اسے غریب جان کر وہ اسے منع کرنے والے تھے۔ لیکن میرے جواب نے ان دونوں کو خوش کر دیا۔ وہ میرا ماتھا چوم کر مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی صبح کی تھکی تھی، کچھ آرام چاہتی تھی، اس لیے فریش ہوتے ہی میں سکون سے سو گئی۔ یہ کوئی رات 2 بجے کا وقت تھا جب مجھے ایمرجنسی کلینک جانا پڑا۔ وجہ وہ کیس تھا جس کا شوہر میرے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اس کے بچے کو بچا لوں۔ مجھے بھی اس پر ترس آ گیا۔ ہمارا کام ہی ایسا تھا، اکثر جب رات میں کوئی نزدیک ڈاکٹر نہ ملتی، ایسے ہی رات میں مجھے جانا پڑتا۔ میں بھی جلدی میں چلی گئی۔ وہاں جا کر مریض چیک کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں بنوائی، بس منہ سے ہی بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پوتے کو بچا لو۔ یہ ان کی دادی کی آواز تھی۔ میرے بیٹے کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی اسے بچا سکتی ہیں۔ میں آپ کے پیر بھی پکڑنے کو تیار ہوں، یہ خاتون کے شوہر کی آواز تھی۔ ان سب میں جو بات مجھے عجیب لگی وہ سب کا لڑکی کے بارے میں ذکر تھا۔ میں تو حیران ہو گئی کہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کو بیٹا ہی پیدا ہوگا، تبھی سب اتنا پاگل ہو رہے ہیں۔ اگر بیٹی ہوتی تو آرام سے بیٹھ کے انتظار کرتے کہ کب یہ سب ختم ہو اور وہ لوگ یہاں سے جائیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے کیسز دیکھ چکی تھی۔ خیر میں نے ان کو باہر بھیجا اور خود مریضہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا چیک اپ کرتے اور الٹرا ساؤنڈ کرتے ہی میں اس کا کیس کروانے لگی۔ جب میں فارغ ہوئی تو بے ساختہ اس عورت نے اٹھتے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور بولی، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ۔ اگر آج یہ بچہ مر جاتا تو میرا شوہر مجھے اور میری بچیوں کو بھی مار دیتا۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس بار لڑکا نہ ہوا تو میری خیر نہیں۔ جب کسی نجی کلینک سے اس کو خوشخبری ملی کہ میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے تو اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن اب جب میری ساس نے غصے میں مجھے مارا تھا تو میرا شوہر بھی وہیں موجود تھا۔ میری حالت دیکھتے ہی وہ پاگل ہو رہا تھا، میرے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے، بیٹا جو پیدا ہونے والا تھا۔ اس بات پر ان دونوں کی بحث بھی ہوئی، لیکن پھر جلدی سے وہ مجھے لے کر گھر سے نکل گئے اور سارے راستے یہی باور کرواتے رہے اگر بچے کو کچھ ہوا نا تو مجھے اور میری 4 بچیوں کو جلا کر مار دے گا اور خود شادی کر لے گا۔ اس کی باتیں سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو گناہ عورت کا کیسے ہوا، اور اگر بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو سارا انعام اور کریڈٹ شوہر کا۔ کیا یہ سب کسی ایک کے بس میں تھا؟ بیٹی تو رحمت ہی ہوتی ہے، لیکن سب نے اسے زحمت ہی بنا دیا۔
میں نے उसे दिलासा दिया कि अब तो खुश हो जाओ और सारी बातें भूल जाओ। अब शोहर सही रहेगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम खुद से चुपचाप बर्दाश्त करती रहोगी तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। इसलिए खुद के लिए आवाज उठाना सीखो। नहीं नहीं मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो गरीब और अनपढ़ हैं। अगर तलाक हो गई तो कैसे बच्चों को पालूंगी? अब सब ठीक होगा, आपका बहुत शुक्रिया। उसकी बातें सोचते मैं घर आ गई और उसकी बातों को सोचते सोचते मैं लेट गई। मेरी दुआ यही थी कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा और शोहर भी अच्छा हो, ताकि ऐसा कोई सीन ना हो। यही आखिरी सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह उठी तो क्लिनिक जाने के लिए तैयार थी। अम्मी ने जाने से मना कर दिया कि कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। उस दिन मैं क्लिनिक नहीं गई और कमरे में आते ही कपड़े तब्दील किए अम्मी के साथ किचन में आ गई। दोपहर हुई तो वो लोग भी आ गए और मुझे देखकर पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। लड़का भी देखने में सीधा साधा था। यूँ हमारा रिश्ता पक्का हो गया। लड़के की अम्मी गांव में रहती थी, जबकि लड़का यहाँ पर जॉब करता था। महीना ब महीना खर्चा वो गांव में भेज दिया करता था। लड़के की माँ बड़ी खुश नजर आ रही थी। होती भी क्यों ना, पढ़ी लिखी और डॉक्टर बहू मिली थी जो अच्छा खासा कमा लेती थी। वो देखने में भी सही लग रही थी, बस आदतें थोड़ी अजीब सी थी। मुझे लगा उनको ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं डॉक्टर हूँ। खैर, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो क्या सोचती हैं या क्या नहीं सोचती। मुझे तो जिंदगी अपने शोहर के साथ गुजारनी थी, इसलिए मैं कुछ मुतमईन थी। शादी की तारीख रख दी गई। यूँ मैं शादी करके अफजल के साथ उनके किराए के फ्लैट में आ गई। शादी के बाद शुरू के दिनों में तो मेरी सास मेरे पास ही रुकी और हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो चली गई थी। मैंने काम वाली माँ से रख ली। सुबह हम दोनों काम पर चले जाते और शाम को घर वापस आते। मासी मैंने अपने घर से ही रखी थी, जो काफी अरसा हमारे साथ रही थी। मासी पर मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। मेरे शोहर वाकई बहुत मोहब्बत और इज्जत करने वाले साबित हुए। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। मैं उनके संग बहुत खुश रहने लगी थी। एक साल बाद हम दोनों ने मिलकर शहर के बीच मौजूदा बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब एक कमी महसूस होने लगी थी, और वो थी औलाद की। मुझे औलाद ही नहीं हो रही थी। मैंने अपना पूरा चेकअप करवाया, अपने शोहर का भी करवाया, काफ़ी इलाज करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम दोनों में कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद हमें औलाद की खुशी नसीब नहीं हो रही थी। पता नहीं, शायद ये हमारा कोई इम्तिहान था या अल्लाह हमारा सब्र देखना चाहता था। मेरे शोहर तो अक्सर कहते कि हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। उठ गई। मैं मायूस हो चुकी थी। अब मुझे यकीन था ऐसा कोई मुआवजा या कोई तरकीब कुछ नहीं होने वाला। मैं कोशिश करती थी कि खुश रहूं, क्योंकि जब मैं उदास होती तो मेरे शोहर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और करते भी क्या, हम दोनों ही घर में रहते थे। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे शोहर ने मुझे बच्चा अडॉप्ट करने का मशवरा दिया, लेकिन मुझे तब वो मशवरा खास पसंद नहीं आया था। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये बात आई थी, अक्सर लोग मेरे पास अस्काते हमल के लिए आया करते थे, यानी अपना हमल गिरवाने के लिए। लेकिन मैं कुछ कुछ डरती थी, और ये खौफ भी था कि अगर किसी का बच्चा ज़ाया कर दिया तो आगे कहीं मेरे बच्चों में नुक्स ना आ जाए। और मैं सबको मना कर देती थी। लेकिन अब मैं सोच रही थी, अगर मैं बच्चा गिराने की बजाय किसी को जान के खतरे का कहकर बच्चा पैदा करवाऊं और वो खुद रख लूं, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। इससे मुझे भी औलाद का सुख मिल जाएगा और उसको तो वैसे भी लगाव नहीं होगा। इसीलिए तो बच्चा गिराने आती है। ऐसी औरतों का क्या भरोसा, बस यही सही है। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो सब लोग इतना डरते थे। उनका एक ही जवाब होता कि हमें से जान छुड़वानी है। मुझे मना कर देते और जाकर अपना काम पूरा करवा लेते। मुझे एक बार फिर से नाकामी का सामना पड़ा। सारी कोशिश बेकार हो गई। अब तो बस मैं जैसे पागल होने को थी। अब मैं खुद गर्ज बनने जा रही थी। जब इन्हीं दिनों एक दिन एक कम उम्र लड़की डर से करहाती हुई मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे खटका हुआ। बोला, इतनी छोटी लड़की और माँ बनने वाली है। मुझे तो वो शादीशुदा भी नहीं लगी, क्योंकि वो लड़की अपनी माँ के साथ आई थी। खैर, मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार कर लिया। अब मुझे उसी पर अमल करना था। मुझे पता था कि मैं गलत करने जा रही हूँ, लेकिन मैं और करती भी क्या। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैं खुद से ये वादे करते कि मैं उसे दुनिया की हर खुशी और बहुत सारा प्यार दूंगी। फिर कुछ ही देर बाद मैं उसने खूबसूरत बेटा जना। उस बच्चे को देखते ही उसे पाने की ख्वाहिश जागी। फौरन मैंने वो बच्चा छुपा दिया। उस लड़की को बोला कि तुमने मुर्दा बच्चा जना है। मेरी बात सुनकर वो बहुत रोई थी, जबकि उसकी माँ ने शुक्र का कलमा पढ़ा
उसे कोई फर्क ही ना पड़ता था, उसका बच्चा मरे या जिए। उसकी माँ ने उसको समझाया, लेकिन वो लड़की अपने बच्चे का चेहरा देखने पर बाजिद थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहां से फरार हो गई। उस बच्चे को मैं घर ले आई। मेरे शोहर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उसे यही बताया कि कोई अपना बच्चा छोड़ गई है। इसका मतलब है कि उसे ये नहीं चाहिए। मेरे शोहर ने मुझे कहा भी था कि हम पुलिस को बता देते हैं, ताकि अगर कोई मसला हो तो हम पर बात ना आए। तब मैं घबरा भी गई, क्योंकि मेरे शोहर ने भी नोट किया। उसने मुझसे पूछा भी था, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता दो। लेकिन मैंने उसे कुछ ना बताया और कहा, अगर पुलिस को बताया तो क्या पता उस लड़की की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए, और फिर कोई उसे शादी भी ना करे, क्योंकि वो तो जवान लड़की थी। शोहर कोई खास मुतमईन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कोई सवाल भी नहीं किया। लेकिन अब वो मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता था। शायद उसे कोई शक था मुझ पर, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं बहुत मोहब्बत से उसकी परवरिश कर रही थी, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ का सबक दिया। मेरे दिल का चोर मुझे मुलामत करता कि मैंने गलत किया है, लेकिन अगले ही पल बच्चे को देखकर मैं सब भूल जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत ही नरम तबीयत और मदद करने वाला है। ये तब की बात है जब वो तीसरी जमात में था। एक दिन एक काले रंग की वजह से सब लड़के उस बच्ची को परेशान कर रहे थे। ना सिर्फ उसने सबको समझाया, बल्कि ये भी समझाया कि काले या सफेद से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपके बर्ताव से पड़ता है, जो तुम सब उसके साथ कर रहे हो। इसलिए मैं यही कहूंगा कि तुम सब काले हो, यानी दिल के काले, और ये दिल का सफेद है। तब ना सिर्फ उन बच्चों ने उस लड़की से सॉरी किया, बल्कि मेरे बेटे की ये बात नोट करते मुझे भी स्कूल में बुलवाकर उसकी तारीफ की गई। मेरा शोहर जब मुझे उस पर अपनी ममता लुटाते देखता तो काफी खुश होता। एक बच्चा ख्वार होने से बच गया था, बल्कि उसे इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली मिल गई थी। और ये भी अल्लाह की कुदरत है। उसकी बात सुनकर बेसाख्ता मैं अपनी जगह चूर सी हो जाती। फिर जब मेरा बेटा 10 साल का हुआ, तब एक कार एक्सीडेंट में मेरा शोहर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। गम बहुत बड़ा था, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं बर्दाश्त कर गई। अब मेरा वाहिद सहारा मेरा बच्चा ही था। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखती। वो कब जवान हुआ मुझे खबर ही ना हुई। मैं अब बीमार रहने लगी थी। अब मुझे मेरा ये गुनाह अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था कि मैंने किसी से उसकी औलाद, उसका बेटा छीन लिया। लेकिन अब मैं पछताने के अलावा कर भी क्या सकती थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे सच बताऊं, और सच बताए बगैर शायद मेरी रूह को सुकून न मिलता। मेरे दिल पर एक बोझ सा था, लेकिन अभी शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं होनी थी। अभी तो और कुछ बहुत गलत होना बाकी था, वो भी सिर्फ एक मेरी गलती की वजह से। जब एक दिन अचानक वो अपने साथ एक लड़की भी लाया, और जो ही मैंने उस लड़की का घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही औरत थी जिसकी गोद से मैंने बच्चा चुरा लिया था और उसे कह दिया था कि वो मर गया है। लेकिन ये तो बहुत जवान थी। तो क्या वो उसकी बेटी थी, और उसका बेटा अपनी ही बहन से ब्याह कराया? ये कैसा गुनाह हो गया मुझसे? मैंने उससे फौरन ये सब करने की वजह पूछी। माँ, मैंने ये सब इसलिए किया कि इसके घर वालों ने इन दोनों को घर से निकाल दिया है। लड़की को सब बद किरदार कह रहे थे, जबकि ये तो देखने में ही मुझे काफी मासूम लगी थी। मुझे अपनी अपनी सी लग रही थी, और अब इससे शादी भी कर ली। मैंने इसी वक्त सबके सामने इसे निकाह कर लिया। उसकी माँ को भी मैं यहीं ले आया हूँ। मैंने सही किया ना अम्मा? तुम उसकी माँ से मिलवाओ मुझे। अंदर मुझे उसे देखना है। मुझे इस तरह बात करते देखकर मेरा बेटा भी हैरान हुआ, लेकिन फिर उस औरत को अंदर ले आया, और जो मैं सोच रही थी वो सब सच था। ये वही औरत थी जिसका वो बेटा चुराया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें शायद मैं याद नहीं, लेकिन मुझे तुम याद हो। मैं वही हूँ जिसने उस दिन तुम्हारा बच्चा जना था और कहा था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन वो मरा नहीं था। मैं खुद गर्ज हो गई। लेकिन आज अगर मैं चुप रही तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, जिसकी माफ़ी शायद मुझे कभी ना मिल सके। बेबसी मेरे चेहरे पर रकम थी। मैं बहुत पशेमान हूँ। अपने गुनाह पर यह निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा वही बेटा है और तुम उसकी माँ हो, और ये इसकी बहन है। मैंने रोते हुए सारी हकीकत उनके सामने रख दी, और अब सज़ा सुनने के लिए मुंह नीचे किए रोए जा रही थी, जब मेरे बेटे की आवाज़ आई, अम्मी, आपने बहुत गलत किया है इनके साथ, मेरे साथ भी और मेरी बहन के साथ भी। लेकिन एक बात मैं फिर भी नहीं बोल सकता कि आप मेरी माँ हैं। मैं आपको इसलिए नहीं माफ़ करूँगा कि आपने मुझे पाला और इतनी आसाइश भरी ज़िंदगी दी, बल्कि इसीलिए माफ़ करूँगा कि आपने एक और बड़ा गुनाह करने से मुझे बचा लिया, और मैं आपको माफ़ करता हूँ। अपने बेटे की बात सुनते ही मैं और शिद्दत से रोने लगी। उस औरत ने भी मुझे माफ़ कर दिया। उसका कहना था कि अगर वो एक बार अपने बच्चे को देख लेती तो ऐसा कभी ना होता, लेकिन तब उसकी भी मजबूरी थी।
نکاح تو ان کا بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے مولوی سے رابطہ کرتے انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا۔ پھر سے اپنی دونوں ماؤں کو اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آخری وقت میں اپنی ماں کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس نے اپنی ماں کو معاف کر کے صحیح کیا تھا، یا اسے اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا؟ یہی ان کی سزا ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔